Amna, Parker, Rabah, and Sidra. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, the next topic is like types of order of reaction. And this topic can also be in the by the name integrated rate equation. Integrated rate equation. So we have to study two different orders. एक हमको जो पढ़ना है that is zero order reactions. ठीक है? And then we have to study the first order reaction. Write the topic one, that is zero order reaction. ठीक है, यहाँ तक लिखिए रेज योर हैंड वंस डन, एंड उसके बाद फिर आप लिखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ तक लिखिए. Raise your hand once you're done writing till here. This topic zero order reaction. Waiting for Aisha, Rabah, and Sidra. Just waiting for Rabah now. फिर तो होमवर्क अब 7:45 टू. ओके फाइन पाकर हम मना कर देते हैं टीम को. आपको वो लिंक भी मिलता है क्या पाकर? या पाकर जी जी, you get the meeting link also? Yes, sir. And then, like, Would if I don't join, they ask me to join. नहीं ठीक है. डू यू वांट टू बी इन, मतलब आपको अटेंड करना है क्लासेस वहां पे? Sir, I've already attended Hello Alkin, Hello Aryan classes. हाँ तो लेकिन आप बोल रहे थे ना रिवाइज करने के लिए अटेंड करेंगे हम, ऐसा कुछ कह रहे थे ना आप? Yes, sir. Revise because like my mom, she was like, you can join the classes for revision and all that. But क्या? I already have the notes. Oh, सॉरी. I already have the notes you gave. हाँ नहीं, हम एक बात पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू अटेंड दोस क्लासेस या फिर यू डोंट वांट टू अटेंड दोस क्लासेस एनीमोर? Sir, I can watch the recording online, right? YouTube. हाँ यू कैन वॉच द, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट आल्सो. नहीं देखिए असल में व्हेन आई इफ आई विल आस्क देम टू डिसकंटिन्यू गिविंग द लिंक्स ना, तो फिर वो आपको उस ऑटोमेटेड चीजें होती है ना, दैट यू विल गेट द लिंक्स ऑटोमेटिकली. वो ऐसे मतलब वो टाइप नहीं करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द लिंक्स एंड होमवर्क, सारी चीजें आपको एक साथ मिलती है बैच में, सबको एक साथ मैसेज जाता है, ठीक है? सो हम बस बोल रहे हैं कि आपको वहां से 12C5 से निकाल दे, सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग रिगार्डिंग 12C5. ओके. So, thank you, sir. टेस्ट पेपर भी मिला था क्या कल 12C5 का? हाँ पार्कर, No, sir. टेस्ट पेपर नहीं मिला था, ठीक है. Okay, fine. All of you have written this down. ध्यान दीजिए. All of you guys, please focus. Don't write anything. पेन को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा. And see. So let us suppose we are having a reaction in which A is giving you some product P.
and this reaction has been experimentally observed that it is a zero order reaction. ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या समझे? This is a zero order reaction. We have already seen that. Now there are two different ways in which we can determine the rate of reaction. कितने ways है हमारे पास? We have two different ways. What are the two different ways? एक तो आपके पास experimental rate निकलेगा. कैसे? You will start a particular reaction. आप reaction को start कीजिए and you can have the equation rate will be equal to minus the change in concentration of A divided by the change in time. तो इसके लिए आपको you need to do some experiment. You need to do experiment for this. दूसरा जो आपके पास the other way that is theoretic, mean it is you don't have to do any reaction. आपको lab नहीं जाना पड़ेगा. You can get the rate of reaction by using this equation. Rate is equal to rate constant into concentration of A to the power 0. Now for this reaction you only need the rate constant जो कि किसी और ने reaction किया होगा तो वहां से rate constant आप ले सकते हैं. Now both of these things are giving you rate. So I can equate this minus dA by dt and k into A to the power 0. अब जब इनको आप इंटीग्रेट मतलब दोनों को साथ में कंबाइन कीजिएगा तो यू विल गेट डी ए डिवाइड बाय डी टी इट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. These things will be, अच्छा यहाँ माइनस साइन छूट गया, माइनस डी है. ठीक है. नाउ ए टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. करेक्ट? सही है? यस और नो? प्लीज टेल मी. है ना? Yes, sir. Anything to the power 0 is equal to 1. So we can now write this as dA is equal to dt और माइनस साइन को उधर ले जाइए तो you will get minus k dt. Now integrate both sides. ध्यान दीजिएगा, don't write anything. Integrate both sides. When you integrate both sides, you have integration of d into the concentration of A, which will be equal to minus k, because k is a constant, integration of dt. So you know that when integration and differentiation will be there, so you will have only A here, which will be equal to minus kt. All of you know ना integration ऐसे होता है, right? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Yes, Is there sir. anything missing या फिर सब कुछ हो गया? Is there anything missing? एक इंटीग्रेशन. हाँ पार्कर बोलिए. What पार्कर? No, sir. Nothing is missing. Nothing is missing. पक्का? Who have किसके पास मैथ्स है यहाँ पे? मैथ्स किसके पास है? Nobody has maths. किसी के पास मैथ्स नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है. अच्छा ये बताइए, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल या फिर Sir, इनडेफिनेट I इंटीग्रल? have much. यू हैव मैथ्स ना, तो बताइए डेफिनेट इंटीग्रेशन था, इनडेफिनेट था? Sir, it's definite. डेफिनेट. क्या लिमिट्स है? Wait, क्या sir. मैथ है आपके पास? क्या मैथ है आपके पास? डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होते हैं ना, यहां से यहां तक. लोअर लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी तक आपने क्या? Sorry, it's indefinite. Yes, indefinite. हाँ, indefinite. Okay, ठीक है. It is indefinite integration, right? So whenever you have indefinite integration, there will be an integration constant, right? तो यहाँ पे plus c is missing. I hope जिनके पास मैथ्स नहीं भी उनको भी अभी रियलाइज हुआ होगा that yeah plus c should be there. Yes or no? Please tell me guys. Correct है? नहीं. आमना, आयशा, पार्कर and सिद्रा, tell me. Sir, what is plus C? प्लस सी के बारे में आप लोगों को पता नहीं है? और किसको नहीं पता प्लस सी? रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो अबाउट प्लस सी. आयशा को नहीं पता, मरियम पार्कर को भी नहीं पता. आमना and सिद्रा, Yes, sir. आपको पता है प्लस सी होता है व्हेन इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन? Yes, sir. अच्छा आपको पता है, ठीक है. रबा को तो पता होना चाहिए बिकॉज रबा हैज मैथ्स. रबा आपको पता है ना? Yes, sir. I know. हाँ आपके पास तो मैथ्स है, बताओ जरा क्यों होता है ये प्लस सी? Plus C is a constant term, sir, because for indefinite integration, हम्म. कहाँ? because of the values. वैल्यूज? Because व्हाट वैल्यू? the value is not given, so that's why I don't know how to explain, sir. But होता है. C is a constant term.
सी इज अ कांस्टेंट टर्म। चलिए ठीक है, तब इसको हम लोग ना ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इवन आई डोंट रिमेम्बर वो प्लस सी कहाँ से आता है, ठीक है। तो बट हैव अनदर वे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे रहने देते हैं ना। हम क्या ऐसा कर सकते हैं, देखिए अभी आप लोगों को ना दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। जनरली आई यूज इंडेफिनिट, फिर उस मतलब इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, आप डेफिनेट भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेट में बस ये कि ना यू शुड नो द लिमिट्स, की लिमिट्स क्या क्या है। जो आपके पास रिएक्टेंट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, तो पहले तो इनिशियली कितना होगा, ए नॉट होगा, ए नॉट से लेकर ए तक। करेक्ट है ये, सोनो प्लीज टेल मी। आमना, आयशा, पारकर एंड रबा, Yes, sir. ठीक है। और जो टाइम होगा, टाइम कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर टी तक। आई होप नाउ दिस इज फाइन, यस और नो प्लीज टेल मी। पार्कर, आयशा, यस और नो, आयशा एंड पार्कर, स्पेशली आप लोग के लिए। मेक सेंस पार्कर, है ना? ठीक है। अब जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, आई विल गेट द सेम थिंग, आपको मिलेगा क्या, ए, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन, और ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट आता है व्हेन यू हैव टू पुट द लिमिट, और ए नॉट यहां नीचे रहेगा और ए ऊपर रहेगा, एंड माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट्स में टी रहेगा, यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे टी। मेक सेंस, यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। ऐसे ही होता है ना। फिर क्या करते हैं, ए को इधर प्लग इन करते हैं, माइनस ए नॉट करते हैं, करेक्ट है, इज इक्वल टू, Yes, sir. क्या करते हैं, इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो। कुछ हमने उल्टा लिख दिया क्या, लेट मी सी। No, sir, it's correct. इट्स करेक्ट होंगे ना, ठीक है, फाइन। सो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, टी माइनस जीरो विल बी टी ओनली, माइनस के टी आ गया, ठीक है। इफ यू रीअरेंज दिस, देन यू विल गेट अ फॉर्मूला दैट ए, थोड़ा इसको ना स्पेस देके लिखना पड़ेगा, a is equal to minus a naught will go into the RHS, it will become positive a naught minus kt। अब यहाँ पे ना एक एक चीज के बारे में देखिए, हम लिख देते हैं, व्हाट इज दिस, दिस a is the remaining concentration of reactant, बची हुई concentration ना, remaining concentration of reactant, this a naught, this is the initial concentration, इतना लेट आ रही है मरीम खातून, initial concentration of reactant, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये के जो है आपका, दिस इज रेट कांस्टेंट, और ये जो टी है आपका, टी इज टाइम, Right. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मरीम खातून, व्हाई आर यू सो लेट मरियम? कितना आप लोग, क्या भाई एग्जाम नजदीक आते आते आप लोग को नींद आने लगी क्या बहुत ज्यादा? ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ना, ये सर पीसलनी, आमना, आयशा, पार्कर, रबा एंड सिद्रा, Yes, sir. ठीक है। सो प्लीज कॉपी दिस डाउन, एंड मरियम खातून आप भी कॉपी करना स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग में आप 3-4 लाइन छोड़ दीजिए बस, दैट इज इट, okay, and then you will write the topic zero order reaction, and then please copy this down.
Fine. अब देखिए बहुत ही डायरेक्ट सवाल इन सब चीजों में आता है, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, है ना। ये बहुत ही आसान सा सवाल देते हैं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट इक्वेशन ना। A is equal to A naught minus KT. A is the remaining concentration of reactant. A naught is initial concentration of reactant. K is rate constant and T is time. Please write a question for a reaction. Please write this with me. For a reaction A giving a product B with K is equal to 2 mole per liter per second, calculate the amount of reacted in 10 seconds. ठीक है। नाउ फर्स्ट जो पहला हर्डल है आपके पास, दैट इज what is the rate, what is the order of reaction. So by the units of K you can understand that this is a zero order reaction, है ना, because the unit of K is mole per liter per second. So it will be a zero order reaction, because zero order reaction कहीं क्या होता है, mole per liter per second, which is equal to the rate of reaction का जो unit होता है ना. So I hope you will not have problem in identifying the, you will not have problem in identifying the order of reaction. Okay. So once you have identified the order of reaction, you can use this formula A is equal to A naught minus KT in order to get the answer. Can you please write this down? आपके पास दिया हुआ है ना चीज, initial concentration is given, rate constant is given, and time is also given. Rate constant, अच्छा initial concentration नहीं दिया हुआ ना. Wait a second, let me give you the initial concentration. In 10 seconds, if ऐसे लिख लीजिएगा, initial concentration नहीं दिया था हमें. If initial concentration of A is 50 moles per liter. ठीक है. Now you have initial concentration also. हो जाएगा ना. Yes or no, please tell me guys. आमना, आयशा, मरियम पाकर, खातून, रबा एंड सिद्रा, Yes, sir. है ना. Yes, You sir. have to just plug in the values in the formula and tell me the answer. Once you're done, you will send the answer on my Zoom chat. Just send me the value, okay. Just send me the value. यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा कहने का ये है. Sir, हम्म. sir, the time is always supposed to be in seconds, and if it is not in seconds, then you have to convert it in seconds. See, you have to have the unit of time should be same in the rate constant, and जो यहाँ टाइम होगा ना वो दोनों सेम यूनिट्स में होना चाहिए. अगर रेट कांस्टेंट पर मिनट रहेगा तो आपको फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. दैट्स दी ओनली थिंग. रेट कांस्टेंट में अगर पर मिनट दिया हुआ है और टाइम सेकंड में, तो आपको फिर मिनट में चेंज करना पड़ेगा. इफ द रेट कांस्टेंट इज इन सेकंड एंड यू हैव बीन गिवन टाइम इन मिनट्स, तो मिनट से फिर आपको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. Yes, sir. Okay.
नहीं, यूनिट्स लिखने हमने नहीं कहा ना, यूनिट्स छोड़ दीजिए, अभी यूनिट्स अभी मत लिखिए आप, ठीक है ना। सिद्रा, आयशा एंड पार्कर हैव सेंट द आंसर, वेटिंग फॉर रबा, आमना एंड मरीम खातून। यूनिट्स अभी छोड़ दीजिए, यूनिट्स हम समझा देंगे आप लोग को, डोंट वरी। अच्छा, आमना ने आंसर व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है। वेटिंग फॉर रबा एंड मरीम खातून। रबा एंड मरियम खातून। Okay, what happened, Rabah? You're not able to do it. Yes, अरे sir. भाई, why? No, sir, I couldn't get it. नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगा ना। आप कुछ तो लिखिए कम से कम, यू राइट द फॉर्मूला, यू ट्राई टू प्लग इन द वैल्यूज। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ओके। इसमें आपको कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें तो बहुत ही ज्यादा खोल खोल के लिखा हुआ है ना, टाइम आपको दिया हुआ है, सो यू नो वेयर टू प्लग इन दिस वन। यू हैव गिवन द रेट पॉजिटिव, तो यू नो वेयर यू हैव टू प्लग इन दिस वन। दिस वाज 50 मोल्स, इसमें लिखा हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये भी आपको प्लग इन करने आना चाहिए। एटलीस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड टेल मी। मरीम खातून, सेंड योर आंसर ऑन माई व्हाट्सएप। यस और नो रबा? ये प्लग इन करना तो आना चाहिए ना, भले ही मतलब जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो प्लग इन तो कर सकते हैं ना आप कम से कम। यस और नो रबा? अरे बोल ही नहीं रहे हैं आप। Yes. Sir, which formula I have to use here? अरे ये तो फॉर्मूला हमने ये भी तो शो किया हुआ है भाई, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। Yes, okay. सॉरी, मरियम खातून, हाँ मरियम खातून, प्लीज सेंड योर आंसर ऑन माय व्हाट्सएप ना क्विकली। भाई बहुत टाइम लग रहा है, मरियम खातून सेंड दी आंसर। हम्म। रबा ने बताया, ओके मरी, अच्छा मरियम खातून ने भेजा। ठीक है, आपने फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। बट देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, जिन लोगों ने, जिनका आंसर 30 भी आया यूजिंग द फॉर्मूला, सब कुछ आपको सही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपने सब कुछ सही किया, इसमें कोई भी मतलब ये जो आपने किया ना, यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा। बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन क्लोजली, दे आर आस्किंग द अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इन 10 सेकेंड्स, और जो आपने कैलकुलेट किया है, व्हाट इज दैट, इट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैन यू सी द डिफरेंस? आमना, आयशा, पार्कर, रबा एंड सिद्रा, Yes, sir. है ना? ठीक है, तो यहाँ पे सवाल को पढ़ना बहुत ही ज्यादा अहम है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। व्हाट यू हैव डन, उसको वो तो करना ही पड़ेगा। सी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो अमाउंट रिएक्टेड आ जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे पीसी,
सोल्यूशन में सबसे पहले यूनिट ऑफ के इज मोल per liter per second, therefore it is zero order reaction. It is zero order reaction. ठीक है. अच्छा, if it is zero order reaction, then हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? Integrated rate law equation for zero order is A, the remaining concentration of reactant will be equal to the initial concentration of reactant minus KT. So this will be equal to A naught कितना है आपके पास? A naught it is equal to 50 minus K is equal to 2, time is equal to 10. So this will be equal to 50 minus 20, that is equal to 30. This will be moles per liter. जो यूनिट आपका ए नॉट का है वही यूनिट आपका किसका होगा? ए का भी होगा, बिकॉज यहाँ पे दे आर इक्वल है ना. ए नॉट का भी वही यूनिट होगा, के टी का भी वही यूनिट होगा. ठीक है. सो प्लीज सी, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट. सो अमाउंट रिएक्टेड विल बी इक्वल टू, अमाउंट जो रिएक्ट किया है वो किसके बराबर होगा? द इनिशियल अमाउंट माइनस द अमाउंट रिमेनिंग. इनिशियल अमाउंट कितना था? 50 माइनस द अमाउंट रिमेनिंग, इट इज इक्वल टू हाउ मच? अमाउंट रिमेनिंग इट इज इक्वल टू 30. अमाउंट रिएक्टेड कितना हो जाएगा? 20 मोल्स पर लीटर. नाउ इफ यू सी क्लोजली, यहाँ पे एक जो बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही अहम बात है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग नाउ एंड लेट अस ट्राई टू एनालाइज द यूनिट ऑफ के. द रेट कांस्टेंट के, उसकी यूनिट को आप एनालाइज कीजिए. So what is the unit of K? K बोल रहा है, what is the value? K is equal to 2 mole per liter per second. ध्यान दीजिएगा, 2 mole per liter per second. What is the value of K? Tell me guys. बोलो बोलो बोलो. What is the value of K? एक बार बोलिए आप लोग भी. हाँ, all of you guys बोलिए. Yes, Sidra. What is the value of K? Sidra, what is the value of K? Yes, very good. Aisha, what is the unit of K? 2 mole per liter per second. What does it mean 2 mole per liter per second? ये ध्यान दीजिए आप. 2 moles per liter is getting reactant in each second. 2 मोल पर लीटर रिएक्ट कर रहा है हर सेकंड. कैन यू सी दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी. 2 मोल पर लीटर इज रिएक्टिंग each second. मेक सेंस? यस और नो? सो अमाउंट रिएक्टेड, देखिए, अमाउंट रिएक्टेड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर. 2 सेकेंड में कितना रिएक्ट हो जाएगा बताइएगा इस 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा? बोलो भाई. 4 मोल पर लीटर. 10 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? 50 more per liter. कितना? 20 ना भाई, 50 कौन बोल रहा है? 20 मोल्स पर लीटर. नाउ एज यू कैन सी, अगर हम आपको इस सवाल में ये नहीं देते तब भी आपके पास आंसर आ जाना चाहिए था. यस और नो? प्लीज टेल मी. ओनली बाय यूजिंग द रेट कांस्टेंट. यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. अरे आपको समझ में आ रहा है ना? ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन टू यू. आपको अगर रेट कांस्टेंट दिया है, दैट मींस दे आर आल्सो गिविंग यू द अमाउंट रिएक्टेड इन ईच सेकंड. मेक सेंस? यस और नो? सिद्रा, रबा, रबा आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल हमें. रबा आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन. एंड मरियम खातून, आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके.
Raise your hand once you're done writing. Someone else in the chat. Okay, fine, Alia. Waiting for Parker and Rabah. Alia, you will just take a screenshot for this. Waiting for Parker now. Yeah. Alia, just write this particular equation. No, आप एक पेज के करीब I think you should leave, right? Sidra, Amna, Aisha, कोई बता दीजिए. How much page should she leave? कितना पेज हुआ है अभी? एक पेज. 3/4 page. How many pages, Parker? 3/4 page. 3/4 of a page. अच्छा. Okay. ठीक है. And then at the end of the page ना, you please write Alia this one and raise your hand once you're done. इसको लिख लीजिए पूरा. Raise your hand once you're done writing this part. Alia. Yes. Okay, done. लिख लिया आपने Alia? Done. No, sir. No, sir. Okay. Sir, no, So- sir. I said. अरे no sir बोल रहे हैं. अच्छा. Yes, done. ये नीचे लिखा है ना आपने, remaining concentration of reactant, initial concentration rate, constant time, ये भी Yes, लिखा sir. ना? Yes, sir. ठीक Yes, sir. Okay. Then all of you guys, please write a note. Okay, we have seen for zero order, and this is only true for zero order. Okay, for zero order, we can say that amount reactant आपसे अगर पूछा, amount reacted, this will be equal to KT. Rate constant multiplied by time. You don't even have to use the initial concentration. And from here we can say that amount reacted is independent of initial concentration. है ना? This is only for zero order reaction. ठीक है. अब उसके बाद आप लोग टॉपिक डालिएगा हाफ लाइफ. Half life is represented by T1/2 और T50%. ठीक है. What is half life? तो half life का सिंपल डेफिनेशन होता है टाइम टेकन फॉर 50% completion of reaction. Time taken for 50% completion of reaction. अच्छा, एक बात बताइए, रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है, 50% बाकी है. ये सोनो पीछे नहीं गाइस? हाँ या ना बोलो भाई, जल्दी बोलो. माइक ऑन रखे ना प्लीज. कैन यू प्लीज हैव योर माइक ऑन, है ना? ठीक है. 50% हो गया, 50% बचा हुआ है. देन वी कैन से दैट एट टी हाफ, जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, the amount of A that is remaining will be equal to the initial concentration divided by 2. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. बोलो भाई. A0/2 होगा? Yes or no? Yes, sir.
है ना, 50% रिएक्ट कर चुका है, 50% बचा हुआ है, दैट मीन्स रिएक्टेड अमाउंट भी क्या होगा, ए नॉट बाई टू ही होगा, राइट? सो यू कैन से दैट लाइक दिस, व्हाट इज द रिएक्टेड अमाउंट? will be equal to a naught by 2, reacted amount will be equal to a naught by 2. अगर आप इसको यूज करें, एंड वी ऑल्सो नो रिएक्टेड अमाउंट इज इक्वल टू KT, है ना, रिएक्टेड अमाउंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू KT, तो रिएक्टेड अमाउंट इज a naught by 2, तो आप a naught by 2 लिखिए। नाउ a naught by 2 will be equal to the rate constant K and T, but T कब का, T half वाला, मेक सेंस? yes or no, please tell me guys। Yes, sir. Yes, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट T half will be equal to a naught divided by 2k, है ना, k नीचे चला जाएगा तो you will get a naught by 2k, yes or no, please tell me guys। Yes, sir. ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके से अगर आपको समझना है तो ध्यान दीजिएगा। We know that the formula for zero order reaction is equal to A is equal to A naught minus KT, A is equal to A naught minus KT, when T is equal to T half, जब time T half हो जाए, then we can say that the remaining concentration of A is equal to half of the initial concentration. Now plug in all of these values here, remaining concentration कितना है, A naught by 2 divided by A naught by 2 है, remaining concentration is A naught by 2, initial concentration कितना है, A naught minus K कितना है, K ही है, T कितना है, T half है। Now K minus KT half इधर ले आइए, तो it will be plus KT half, which will be equal to A naught minus A naught by 2. Now we can write this, that A naught minus A naught by 2 कितना हो जाएगा, 2A naught minus A naught divided by 2, this is KT half, ये हो जाएगा आपके पास KT half, 2A naught minus A naught कितना हो जाएगा, A naught by 2, and T half will be equal to A naught by 2k. ना, so from both of these process, दोनों ही तरीके से आपको एक ही चीज मिला है, T half is equal to A naught by 2k, and you have to memorize this particular formula also. T half, the half life of a zero order reaction is equal to A naught by 2k, initial concentration divided by 2 times the rate constant. Please write this down. Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done writing. Just waiting for Aisha now. ठीक, चलिए बताइए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अमाउंट रिएक्टेड इज इक्वल टू हाउ मच, क्या होता है, अमाउंट रिएक्टेड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, टेल मी गाइस, माइक ऑन करके जल्दी बताएं, अमाउंट रिएक्टेड इज इक्वल टू, बोलो भाई, अमाउंट रिएक्ट, नोट में लिखाया है, यस पार्कर, KT. KT, अमाउंट रिएक्टेड इज इक्वल टू KT, ध्यान दीजिए ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, डोंट राइट एनीथिंग। नाउ if I ask time taken, ध्यान दीजिएगा, time taken for completion of reaction, reaction के complete होने में कितना टाइम लगा, that means I am talking about T 100%, right?
100% जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब एक बात बताइए आप लोग, प्लीज टेल मी, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन था A0, तो कितना रिएक्ट किया होगा? A0 में से कितना रिएक्ट किया होगा अगर पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है? तो मान लीजिए आपने 10 मोल लिए, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कितने मोल रिएक्ट किया होगा? इफ यू हैव टेकन 10 मोल्स पर लीटर, सो हाउ मेनी मोल्स पर लीटर वुड हैव 10, है ना? 10 सही है? ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई, है ना? सो वी कैन राइट एट T 100%, at T 100%, we can say that amount reacted, जो भी इनिशियल अमाउंट होगा दैट विल कंप्लीटली रिएक्ट। देखिए आप लोग ना माइक ऑन करके आंसर नहीं कर रहे, बहुत हमको बुरा लग रहा है। प्लीज अगर आप आंसर नहीं कर रहे यानी आपको समझ में सही से नहीं आ रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्विकली, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा आपको फिर समझने में। ठीक है, ट्राई टू आंसर व्हेनेवर आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन की टाइम 100% कंप्लीट हुआ तो क्या मतलब इसका, कितना रिएक्ट किया होगा, तो पूरा या पूरा रिएक्ट किया होगा जो कुछ भी है, राइट? सो अमाउंट रिएक्टेड इज इक्वल टू A0, और A0 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू KT, एंड व्हाट T 100%। अब यहां से आप ये लिख सकते हैं दैट T 100% विल बी इक्वल टू हाउ मच? A0 बाई K, A0 बाई K। अब ध्यान दीजिए आप, A0 बाई K जो है आपका ना, दिस A0 बाई K, T 50% कितना था? A0 बाई, बोलो भाई, व्हाट वाज T 50%? A0 बाई 2k 2K। इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कट के क्या आ जाएगा? T 100%, राइट? हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखिएगा इस T 100% इज इक्वल टू 2 इंटू A0 बाई 2K, है ना? 2 से 2 कट जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? T 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स द T 50%, बट दिस इज ओनली फॉर व्हाट? द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सारी ही चीजें किसके लिए हैं? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Waiting for Parker, Alia, and Rabah. Just waiting for Parker and Rabah now. रबा आपको समझ में आ रहा है? यस रबा? Yes, sir. बट प्लीज आप लोग आंसर करें, है ना? व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस ट्राई टू हैव योर माइक ऑन ऑलवेज एंड आंसर मी। रबा आर यू डन? So just a minute. ओके। जल्दी लिखिए। रबा थोड़ा आप ये ट्राई कीजिए ना, हम भी समझ रहे हैं। हाउ यू राइट इज, आप एक एक लाइन ना देख देख के लिखते हैं एक एक वर्ड को, वैसा नहीं होना चाहिए। यू रीड दिस होल थिंग, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग। अमाउंट रिएक्टेंट A0 लिखा है हमने, फिर A0 इज इक्वल टू KT, T यहाँ पे 100% होगा। देन आई एम जस्ट शिफ्टिंग द K को कहा RHS से A0 के नीचे लेके जा रहे हैं। देन आई हैव जस्ट सेट दैट 2 इंटू A0, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया। तो उसको समझने के बाद ना आप you have to write this whole thing without looking at the screen. This is for everyone, but especially for Rabba, because Rabba, if you are taking too much time, yani ki you are writing each word, you're writing a word, a letter, and then looking at the screen. Then you're writing a letter, and then you're looking at the screen. That should not happen. Okay, Rabba? Yes, sir.
again say that that's not happening. Actually, I took time for understanding it. I didn't even look at it before, right? Like while writing. अच्छा, फिर व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग तब आप नहीं समझ रहे हैं? ऐसा after your explanation, just to figure it out again. अच्छा, अगेन, ओके फाइन, ठीक है, चलो तब तो ठीक है. नाउ प्लीज राइट ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे 3 ग्राफ्स हैं आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो आपको याद रखना पड़ेगा ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, now the first graph that you will have is, देखिए, all the graphs and all the plots will be because of a particular equation. So पहला आपका इक्वेशन क्या है? R is equal to the rate constant K into a to the power how much, tell me guys, जीरो ऑर्डर के लिए a to the power zero. जीरो. क्यों नहीं आ रहा बाकी लोगों का आंसर? a to the power जीरो ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये तो हमको नहीं अच्छा लगता है. इतना आसान सवाल में फट से तुरंत सबका माइक ऑन होना चाहिए, है ना? प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर प्रेजेंट इन द क्लास. ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों का दिमाग कहीं और चल रहा है. ठीक है, ध्यान दीजिए. ए टू दी पावर जीरो, यहाँ पे ए का रहने का कोई मतलब नहीं बनता है. नो मैटर व्हाट दी, नाउ द ग्राफ विल बी बिटवीन व्हाट, द ग्राफ विल बी बिटवीन रेट and the initial concentration A naught. Okay, rate and initial concentration A naught. Now, no matter what the initial concentration is, rate will be always equal to the rate constant. Rate will be always equal to the rate constant. So the graph that you will see here will be a straight line which is parallel to the y-axis. A straight line which is parallel to the y-axis, something like this. A naught की concentration देखिए, initial concentration बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो जाए, no matter what's happening to the initial concentration, our rate is still the same. और ये जो रेट की जो यहाँ पे वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट के. मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? प्लीज टेल मी. बोलो Yes, भाई. Yes, sir. यस, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. सेकंड इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, दैट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ ए माइनस द रेट कांस्टेंट टाइम टी. अब यहाँ पे यू हैव टू पुट द y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला पार्ट. सो दिस इज y and this is your c. Time जो होगा that is x, x के साथ होता है m. Now from here we will plug in, from here we will draw the plot. ध्यान दीजिएगा. What should be on the x axis? Tell me guys. What should be on the x axis? बोलो भाई. T. हाँ, time will be on the x axis. ठीक है ना? और y axis में क्या होगा? A. A. Very good, है ना? Concentration of A, that is the remaining concentration of A. अब बताइए, our intercept वो है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. अरे कहाँ है नेगेटिव भाई? इंटरसेप्ट सी होता है ना. ए नॉट तो पॉजिटिव होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. नेगेटिव में आप कंसंट्रेशन कैसे लेके जाएंगे? बात समझ में आ रही है? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, है ना? सी Yes, इज द sir. इंटरसेप्ट, है ना? सी इंटरसेप्ट होता है. फाइन. सो आवर प्लॉट विल बी, अच्छा ठीक है, सी तो इंटरसेप्ट हो गया, दैट इज पॉजिटिव. दैट मींस आवर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर, ऐसे स्टार्ट होगा. नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दिस, अब स्टार्ट होने के दो तरीके, या तो ऐसे जाए या तो ऐसे ऊपर जाए. ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? टेल मी, पहले ये बताइए. स्लोप क्या है? एम क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड होगा, है ना? एंड जो सही ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे करके यहाँ पे से मिलता है एक्स एक्सिस में, बिकॉज द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट? इस पॉइंट का मतलब ये होता है, इस टाइम पे रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना? सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, ये कंप्लीट होता है. So the graph, the correct graph is going to look something like this. इस तरह से होगा. Now here there are a few points. This particular intercept, it is the initial concentration, that is A naught. ठीक है. And ये जो slope है आपका, the slope here, this is equal to minus K. और आपसे पूछ ये क्या है सर? So this point you can also say that this is T 100%. Reaction जब complete हो गया. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. अरे बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है, तीसरी ग्राफ जो आपकी बनेगी, दैट विल बी टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2k. ठीक है, ए नॉट डिवाइड बाई 2k. नाउ दिस ग्राफ इज बिटवीन द
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वर्सेस द इनिशियल कंसंट्रेशन, कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। एज यू कैन सी, ये आपके पास वाई एक्सिस में हो जाएगा, दिस इज टी हाफ एंड ए नॉट। So as you can see, T half and A naught क्या है, y is equal to mx टाइप का ग्राफ है। So here intercept तो है नहीं, if the intercept is not present then the graph will start from zero, origin से start होगा ना, intercept zero है यहाँ पे, and the m, the slope is positive, negative तो नहीं है, slope क्या है, positive, so it will be something like this as a slope होगा आपका। Now what is this, यहाँ से सब आपको slope मिलेगा, slope will be equal to what, 1/2k, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, दिस पार्ट इज 1/2k इज द स्लोप, x हो गया आपका a नॉट एंड y हो गया आपका t हाफ। मेक सेंस ये सोनो पीसल मी गाइस। अब देखिए ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस a नॉट है ना, एंड दिस इज a वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ a वर्सेस टाइम, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन वर्सेस द इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट, ठीक है। सो आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ रेट वर्सेस ए नॉट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए वर्सेस टी ग्राफ एंड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए प्लीज रेज योर हैंड वंस यू डन एंड स्टार्ट राइटिंग। जस्ट वेटिंग फॉर आयशा नाउ, ठीक है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं एंड ऑर्डर रिएक्शन अपने क्लास में सॉल्व। चलिए एक सवाल कीजिए। ठीक है, फॉर अ रिएक्शन the rate constant is given as 4 into 10 to the power minus 3 moles per liter per second. They're asking how long will it take? How long will it take? How long will it take to reduce the initial concentration? Initial concentration from 0.1 molar to 0.064 molar. ठीक है, सबसे पहले लुक एट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड टेल मी कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है।
from the unit, you should be able to tell what is the order of reaction. In the chat, please. Yes, correct. Very good. हाँ, correct. ठीक है ना? So now you have the what, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं. You have the rate constant, you have the initial concentration 0.1, final concentration जो होगा that is 0.064. You can plug in the values in the integrated rate law equation. क्या था integrated rate law equation? That was A is equal to A naught minus KT. यहाँ से आपको टाइम निकालना है ना. चलिए, please do it. Send your answers on my WhatsApp, okay? Sir, जी बताएं. sir, I sent you. अच्छा, you have sent. ये तो आपने कुछ तो गड़बड़ किया है. मैथ गलत है आपका मरियम पार्कर. बॉड मास यार, बॉड मास लगाओ ना. आपका 0.1 टी कैसे हो सकता है बताओ. आप फोर को उधर, मतलब आप देखो आपने क्या गलती की है. पार्कर, गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? दिखा मिस्टेक आपको पार्कर? टेल मी. यस पार्कर.
अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। मिस्टेक दिखा या नहीं दिखा? Yes. दिखा ना? ठीक है, ध्यान से कीजिए, बहुत आसान लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला है। क्या योर आंसर इज करेक्ट? जस्ट पुट सेकंड्स आमना। यस रबा करेक्ट। आमना, अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए बोल रहे थे, ठीक ठीक। आमना आपका आंसर सही है, यू जस्ट नीड टू पुट सेकंड्स इन द वैल्यू। रबा योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। Those who can send me, please send me on my WhatsApp. बाकी बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा, सिद्रा ने नहीं भेजा, आयशा आपने भी नहीं भेजा अभी तक। ऐसा कोई हार्ड सवाल नहीं था ये, शुड बी डन बाय दैट बाय दिस टाइम। हमें करना पड़ेगा क्या? यस टेल मी। आलिया, आयशा, मरियम खातून। भाई अरे बोलो ना, हाँ ना तो बोलो भाई। आलिया Sending. So sending. सेंडिंग, व्हाट अबाउट अदर्स? मरियम खातून डूइंग, स्टिल डूइंग? are you getting confused? No, sir, I got it. You got it ना? Okay, सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा क्या हो गया? वेरी सिद्रा। आयशा व्हाट अबाउट यू? Sending, sir. सेंडिंग, ओके। आमना आप करेक्ट करके भेजिए है ना? नहीं आमना नहीं, सॉरी, हु वाज दैट? मरियम पार्कर। पार्कर आप करेक्ट करके भेजिए, ओके। Yes. आलिया, हाँ, you just need to put second आलिया है ना? You need to put the value. Yes, Yes, very sir, good no, Sidra. Yeah, very good. बाकी लोग भेजें। Parker, you need to correct the calculation and send it again. अभी भी नहीं आंसर आया बहुत सारे लोगों का। आयशा आपका आंसर नहीं आया अभी तक। पार्कर आपने करेक्ट करके नहीं भेजा अभी तक। What's happening, guys? Aisha, you send on my WhatsApp now, please. Aisha, you can send it on my WhatsApp. Yes, Mariam Khatun, correct, very good. But your answer is wrong. आपने calculation mistake किया हुआ है, ठीक है? I'm not expecting this type of mistake from you guys, ठीक है? Please be serious, आराम से कीजिए, बहुत ही आसान ये तो है ना? What is the, tell me guys, माइक ऑन करें जल्दी, माइक ऑन करें all of you guys, माइक ऑन करके बताएं, what is the remaining amount? What is the remaining amount of A? What is the remaining amount of A? 0.0. हाँ ठीक है, अच्छा वेट, एक अच्छा तरीका आपके लिए ये रहेगा that while you are reading the question ऐसे read कीजिए, for a reaction the rate constant is given as, what is this value? क्या है ये वैल्यू, क्या है ये वैल्यू, क्या दी है? हाँ k दी हुई है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, k is equal to 4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब क्या पूछा उन्होंने, टाइम पूछा हुआ है उन्होंने, टू reduce द इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1। तो 0.1 क्या है, 0.1 मोलर क्या है, बोलो भाई, A0, व्हाट, A0, हाँ ए नॉट, हाँ ए नॉट, A0 ए नॉट, ठीक है। एंड व्हाट इज 0.64, दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इट, है ना, 0.64, या वेरी गुड। सो ए विल बी इक्वल टू 0.064, है ना, माय बैड गाइस, 0.064, a will be equal to a naught minus kt, Kate. a is 0.064, will be equal to a naught is 0.1, is equal to 4 into 10 to the power minus 3 multiplied by t। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये इसको इधर मत ले आइएगा प्लीज, है ना, पहले 0.1 इधर आएगा। सो प्लीज सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, 4 into 10 to the power minus 3 is equal to 0.1 minus 0.064, करेक्ट है गाइस, ये सुनो प्लीज नहीं, इस पूरे माइनस वाले को हमने उधर लेके गए हम तो पॉजिटिव हो गया, 0.064 को जो कि पॉजिटिव था उसको हम आरएचएस में लेके आए तो नेगेटिव हो गया, मेक सेंस, यस और नो प्लीज मी गाइस, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम आल्सो ना, टाइम भी है यहाँ पे, अरे बोलो Yes. तो, ठीक है, थैंक यू। दिस विल बी इक्वल टू 0.036, है ना, और यहाँ पे डिवाइड बाई 4 into 10 to the power minus 3 कर सकते हैं, ये टाइम दे देगा आपको, तो टाइम विल बी इक्वल टू 36 into 10 to the power minus 3 divided by 4 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 will cancel each other, 4 9s are 36, so time will be equal to 9 seconds। चलिए छापो गाइस, those who are not able to do, पता नहीं क्या मिस्टेक किया आप लोगों ने गाइस, I really did not expect this from you guys। जल्दी लिखिए जल्दी। ठीक है, कुछ लोगों का मिस्टेक हुआ था, उन्होंने ठीक कर लिया, आयशा ठीक कर लिया आपने, यस Yes. और नो, आयशा आयशा ठीक कर लिया आपने, ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कैन यू प्लीज गाइस सी द लर्निंग योर ऐप, वहां पे टेस्ट एक्टिवेट हो चुका है क्या, अच्छा उससे पहले छोड़ो, ध्यान से सुनिए, एक बहुत जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनिए। 10:30 PM IST, या जो क्या कह सकते हैं 8 PM KSA, या जो क्या कह सकते हैं 9 PM UAE, विल यू गाइज डू अ क्लास एट दिस टाइमिंग, है ना, जहां पे भी आप रहते हैं उस हिसाब से, आई होप आई हैव रिटन द टाइम करेक्टली, प्लीज चेक, 10:30 से 2.5 घंटा पहले 8 बजेगा, 1.5 घंटा पहले 9 बजेगा, ठीक है, सैटरडे एंड संडे, बताइए, कैन यू गाइज डू 1 hour क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे एट दिस टाइमिंग? हाँ जी बताएं, बोलो भाई, नहीं कोई नहीं करेगा, A little bit early. व्हाट, सर थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते, 8 PM. थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा ना, मतलब ऐसे तो रेगुलर टाइमिंग आपको की 4 से 8 तक तो रेनिवियो की क्लासेस होती हैं, है ना, 4 to 8 PM, करेक्ट, तो हम Yes. तो डेली की 4 to 8 PM बिजी रहेंगे रेगुलर क्लास में, आई एम टॉकिंग एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे, बताइए, टेल मी गाइस, हाँ जी, हाँ हाँ,
Give me a thumbs up if you agree with this. Saturday, Sunday. Thumbs up. Okay. नहीं नहीं अच्छा, रेज योर हैंड कुछ भी ऐसा करके रखिए. गिव मी अ थम्स अप ऑन द चैट. चैट में भेज दीजिए, चैट में आप. आई हैव फिजिक्स क्लास टिल 10:30 PM. ठीक है, फाइन. सैटरडे संडे को आमना और सिद्राप का भी होता है. Yes. ओ, आमना और सिद्रा तो इंडिया में रहती हैं, आप लोग के लिए बहुत लेट हो जाएगा ना. Yes. कैसे करेंगे फिर आप लोग. ठीक है, आमना एंड सिद्रा के बारे में हमको सोचना पड़ेगा. बाकी लोग बताएं, बाकी लोग. Sir, हाँ हाँ, टीमी. can you please scroll up? अरे भाई ये तो बता. अच्छा, पार्कर आपने कर दिया है, ठीक है, तब सब ओके. हाँ, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग. अरे थम्स अप था कुछ तो बताओ. आयशा, यू कांट डू दिस. आयशा, नॉट पॉसिबल. नो, व्हाई. आयशा, व्हाट हैपेंड. किसी और दिन, किसी और दिन, ट्यूसडे थर्सडे बताइए. हम्म. ट्यूसडे थर्सडे. सर सैटरडे को सुबह में नहीं कर सकते. सैटरडे को सुबह में ना सबकी छुट्टी नहीं रहती है असल में. सैटरडे को हम सुबह में तो कर दें. चलिए ठीक है. सैटरडे को सुबह ना, इवन आई वुड प्रेफर यार, मतलब आप समझो ना, आपके लिए तो 8 ही बज रहा है. मरियम पाकर, खुद से उस चीज को समझ लीजिए जरा. आपने जो सवाल पूछा ना, एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है पार्कर, वो थोड़ा सा आपका छूट जा रहा है ना. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी. बहुत हार्ड चीज आपने नहीं पूछा, वो समझ जाएंगे खुद से ही आप. आपको ऐसा लग रहा है. ओके, चलिए हम एक पोल रख देते हैं. ऑल ऑफ यू गाइस आर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट. इज देयर एनीवन हु इज नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ लर्निंग व्यू. सभी लोग हैं ना, ठीक है. पार्कर, समझ में आया. No, sir. नहीं समझ में आया. नहीं, समझो समझो, ट्राई करिए समझने का. Sir, what is the Saturday and Sunday written? वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, बट छोड़ दीजिए. मतलब हम पोल कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही, ठीक है. Okay, sir. पार्कर जी, बताओ. 0.1 का मतलब कितना होता है, 10 टू दी पावर. Minus बोलो. 1. -1. 0.01 का मतलब 10 टू दी पावर Minus 2. -2. 0.001 का मतलब 10 टू दी पावर. Minus 3. ठीक है, तो अभी हम देखिए. तो 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 ना. Yes, sir. ठीक है, 0.036 को क्या लिखेंगे फिर. सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ डेसिमल पॉइंट है ना. क्या लिखेंगे, 36 इंटू 10 टू दी पावर -3 ना. नहीं, बोल दो. अगर आप 10 टू दी पावर माइनस, कितने डेसिमल पॉइंट आपको आगे बढ़ाने, 1 2 3 ना. तो 10 टू दी पावर -3 होगा ना. 1 2 3. मेक सेंस. Yes, sir. ठीक है. हो जाता है था, छोटी छोटी बातें कभी कभी भूल जाता है बच्चा. चलिए ठीक है, हम पूर्ण कर ही लेते हैं एक बार.
एक ऑप्शन होगा ओनली फ्राइडे, एक ऑप्शन होगा ओनली संडे, है ना, एक ऑप्शन होगा फ्राइडे एंड सैटरडे, एक ऑप्शन Sir, होगा सैटरडे एंड संडे। ये बताएं। sir, Friday, I don't think it will be possible because Friday is like a holiday over here, so like we usually go out. अरे भाई हमको लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना कब, मतलब कितने, जैसे मान लीजिए कि कुछ मेजोरिटी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिर्फ फ्राइडे ही छुट्टी है, उनका तो हम सैटरडे को नहीं ले पाएंगे ना क्लास। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, Yes, हम yes. क्लास, हम सवाल ये पूछ रहे हैं व्हेन डू यू हैव हॉलीडे इन स्कूल, ठीक है? व्हेन डू यू हैव हॉलीडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो छुट्टी को हॉलीडे ही बोलते थे। आजकल हम बच्चों से पूछते हैं हॉलीडे, तो उनको लगता है कोई फेस्टिवल होगा तभी हॉलीडे होगा। आप लोग के लिए क्या कि when जब कोई फेस्टिवल होता है तभी हॉलीडे होगा, या फिर सैटरडे संडे हॉलीडे है, या फ्राइडे हॉलीडे होता है? पारकर, Sir, we call it weekend. व्हाट डू यू कॉल? Weekend. अरे भाई साहब, ये तो और अलग वीकेंड वीकेंड क्या पूछे हम? वीकेंड तो वीकेंड तो सबके लिए अलग होगा ना वीकेंड तो, मतलब किसी का सिर्फ फ्राइडे छुट्टी होता है तो उसका सिर्फ फ्राइडे वीकेंड है। सही है भाई। व्हेन डू यू हैव अ हॉलीडे इन स्कूल, हॉलीडे बोले आप बोले क्या बोले भाई, बताओ जल्दी तुम लोग। रबा क्या बोलते हैं आप लोग? Yes, sir. क्या बोलते हैं व्हेन डू यू हैव अ हॉलीडे इन स्कूल? We have it on December 22, sir. देखो, From या देखो इसको, अरे फ्राइडे होता है या नहीं होता है हॉलीडे? Friday, Saturday, and we have holiday this Sunday as well. फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका स्कूल? Only Friday, Saturday रहता है and because of Diwali this Sunday भी है हम लोग को अच्छा, जैसे इस Sunday संडे की बात है, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को क्या बोलते हैं आप लोग, हॉलीडे बोलते हैं या क्या बोलते हैं? वीकेंड वीकेंड ही बोलते हैं सारे बच्चे। आप लोग क्या बोलते हैं इंडिया वाले? वेयर इज इंडिया, हाँ, आमना एंड सिद्रा, आप लोग क्या बोलते हैं? हम्म, अरे कुछ नहीं बोलते क्या आप लोग? क्या बोलते हैं, हॉलीडे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यस सिद्रा टेल मी। वीकेंड वीकेंड ही बोलते हैं भाई साहब, क्या ही हो गया हॉलीडे भाई, हॉलीडे नहीं बोलते? क्या क्या हॉलीडे सही बोलते है। हैं जिस दिन जो हाँ बड़ा बट हाँ, फेस्टिवल हाँ उसको हाँ ज्यादा है। उसको ज्यादा बोलते हैं। We call like vacation, we call vacation, and if a school day is off, then we call it a holiday. Or else it's called like a weekend over here. अच्छा, अगर स्कूल डे ऑफ है तो उसको हॉलीडे बोला जाएगा, अगर मतलब वो स्केड्यूल्ड है। क्या हम क्लियर कर लेते हैं भाई, होता क्या सैटरडे एंड संडे इज हॉलीडे। हम ऑफ, व्हेन डू यू हैव